Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, you will learn the very important concepts of linkage and recombination. This is very important. Keep in mind. Before talking about Morgan's theory of inheritance, there is need to know what is linkage and what is recombination. Apart from linkage and recombination, so many concepts there in the Morgan's theory that make you confused. So I here bring you the video regarding the linkage and recombination. This should be learned frequently and separately from the Morgan's theory. This is not include inside the Morgan's theory, but Morgan's theory just after the Morgan's experiment there will be the Morgan's theory. But this video will you help to the different criteria to understand the different criteria in the Morgan's theory, like the linkage recombination, parental non-parental gene combination, loosely and tightly packed genes. So many concepts that was made by the Morgan's in his experiment. So you should also learn properly and you have a clear-cut concept regarding that particular terms, that is the linkage, recombination, parental, non-parental, loosely and tightly packed, so many things. So in this video you will learn that concept one by one, and later then I will explain the Morgan's theory of inheritance. Before talking about Morgan's theory, actually the name of Morgan's theory was the linkage and recombination. That is overall Morgan's theory move around the linkage and recombination, parental, non-parental gene combination, and so many concepts, that is loosely, tightly packed genes. So if I begin the Morgan's theory just after the Morgan experiment, then you probably get confused regarding the particular concept of linkage, recombination and so many things. So before going to explain the Morgan's theory, let I introduce some basic key concept like linkage and recombination, parental and non-parental gene combination, loosely and tightly packed genes, etc. So many concepts you will learn in this video lecture. So be with the video till the end of the video and make the notes in copy, because this is important terminology, this is important video for you that make the Morgan's theory easier to understand. So without delay timing, let's back over the concepts. Suppose that यहाँ पे एक एक चीजों को समझेंगे, ठीक है ना, एक एक चीजों को समझेंगे. मॉर्गन्स की थियरी समझने के लिए आपको रिकॉम्बिनेंट्स, लूजली टाइटली पैक्ड जीन्स, पेरेंटल नॉन पेरेंटल जीन्स अच्छे से समझना पड़ेगा. थोड़ा सा कहीं भी मिस कर दिया, पूरी कहानी खत्म, मॉर्गन जीवन भर नहीं समझ पाओगे. मॉर्गन्स को समझ लो अच्छे से, इसलिए ये मैं हर साल वीडियो के थ्रू लाइव क्लास तो चलता नहीं हर साल, फिजिकल क्लास में भी अगर चलता है तो ये सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ, तब जाके मॉर्गन शुरू करता हूँ. तो मॉर्गन्स अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, लूजली टाइटली पैक्ड जीन्स, पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल जीन्स. ठीक है, कुछ कंडीशन यहाँ पर मैं आपको फोकस आउट कर दे रहा हूँ. उस कंडीशन पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं केस 1 दे दे रहा हूँ, केस 1. ठीक है, सपोज दैट ये कोई जीन है, सपोज दैट ये कोई क्रोमोसोम है. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, और इस पे तमाम जीन है, जीन 1, 2, 3. ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है उसी के पैरेलल, इस पे जो जीन है वो 4, 5 और 6 से असाइन कर दिया. 2 क्रोमोसोम्स, 1, 2, 3 जीन्स है. हालांकि जीन्स तो सेवरल होते हैं क्रोमोसोम्स पे. 4, 5, 6 इस पे जीन्स है. ठीक है, ये सब क्या है? जीन्स है. ठीक, ये केस 1 है. अब ये क्या कर रहा है? ये परफॉर्म कर रहा है मियोसिस. मियोसिस, और मियोसिस में इसका क्रॉसिंग ओवर फेल हो गया. मियोसिस में ये जीन्स जो है आपस में जब क्लोज आए एकदम, इसका 2 जीन्स इसके 5 जीन के साथ आया, इसका 3 नंबर जीन इसके 6 नंबर जीन के साथ आया, इसका 1 नंबर जीन जो है 4 नंबर जीन के साथ आया, सब साथ आते हैं
क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, टू जीन्स क्लोजली रिलेटेड, उसके बाद क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोम्स जो है साथ साथ आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जीन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखो जीन नंबर 1 दूसरे वाले क्रोमोसोम के जीन नंबर 4 के साथ एसोसिएट हुआ, 2 नंबर जीन 5 नंबर के साथ एसोसिएट हुआ, 3 नंबर जीन 6 नंबर के साथ एसोसिएट हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनना है। मेंडल ने बताया था कि किसी भी कैरेक्टर्स को अगले जनरेशन में एक्सप्रेस करने के पीछे का कारण होता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट और रिसेसिव की वजह से, जीन्स की वजह से अगला जनरेशन डोमिनेंट रिसेसिव को फॉलो करता है। मॉर्गन सबको गलत बता दिए, बोले कि ये सब में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये जीन्स में एक स्पेशल क्राइटेरिया है, टाइटली और लूजली पैक्ड, उसकी वजह से होते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव सब बकवास है। अभी सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी आपके सामने कि मॉर्गन की थियरी क्या थी और मेंडल का क्या था। तो मॉर्गन ने बताया सही होता है, जीन होता है, क्रोमोसोम पे ही होता है, जो मेंडल नहीं बता पाए थे। मॉर्गन ने एक तो जीन को रिकॉग्नाइज कर दिया था, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर को भी डिस्कवर मॉर्गन ने ही किया था, लास्ट वीडियो में बताया गया था। तो ये सब सारी चीजें थी, ये सब आपको बता दिया है। फिलहाल अभी ये समझे कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये दोनों क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मियोसिस। लेकिन मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर है ना, वो 1 और 4 के बीच में, पहले वाले क्रोमोसोम का 1 और दूसरे वाले क्रोमोसोम का 4, पहले वाले क्रोमोसोम का 2 नंबर जीन्स और दूसरे नंबर क्रोमोसोम्स का जो है 5 नंबर जीन्स, पहले वाले क्रोमोसोम्स का 3rd नंबर जीन्स और दूसरे वाले क्रोमोसोम का 6 नंबर जीन्स, ये आपस में क्लोज हुए। लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर फेल हो गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं। इट मीन्स आप लिख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर फेल्ड बिटवीन 1 to 4, 2 to 5 एंड 3 to 6, सब में फेल हो गया। जब क्रॉसिंग ओवर फेल होगा तो एज यूजुअल जैसे पहले क्रोमोसोम्स थे वैसे बाद में भी वही क्रोमोसोम्स सीधे गैमेट्स में चले जाएंगे, ठीक है। जब क्रॉसिंग ओवर फेल होगा तो पहले में क्या थे 1, 2, 3 और दूसरे केस में क्या थे, दूसरे केस में थे 4, 5, 6, ठीक है। तो ये गैमेट्स में आ गए, मतलब पेरेंट्स के जैसे गैमेट्स में आ गए। और मेंडल ने बताया कि यही डोमिनेंट कैरेक्टर्स की वजह से था, लेकिन मॉर्गन ने बताया नहीं, ये क्रॉसिंग ओवर फेल होने की वजह से अगले जनरेशन में एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स को कोई फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये जो क्रोमोसोम जो दिख रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हुआ है, इसको बताया बिल्कुल हूबहू, इसको आप पेरेंटल क्रोमोसोम मान सकते हैं और इसको जो है इसका डॉटर्स क्रोमोसोम मानेंगे तो ये बिल्कुल पेरेंट के जैसे होंगे। पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे था, यानी कि ये पहले नंबर क्रोमोसोम पे क्या था 1, 2, 3 और सेकेंड नंबर क्रोमोसोम पे क्या था 4, 5 एंड 6। इसमें क्या है, पहले नंबर में 1, 2, 3 है और दूसरे नंबर में क्या, सेकेंड नंबर में 4, 5 एंड 6 है, ठीक है, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डॉटर्स क्रोमोसोम है बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह से दिख रहे हैं। दिस काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज सिमिलर और आइडेंटिकल टू द पेरेंटल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज द पेरेंटल क्रोमोसोम्स। दिस इज द पेरेंटल क्रोमोसोम। Why it called parental chromosome? It is look like its parent. It just look like to its parents. ये अपने पेरेंट्स की तरह से दिख रहा है, इस वजह से इसको पेरेंटल क्रोमोसोम्स बोला गया। क्लियर है ना, एक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया है, पेरेंटल क्रोमोसोम्स या पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। दिस काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। इसके क्रोमोसोम नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 3 है, इसके पेरेंट्स में भी वही था 1, 2, 3। रीजन क्या है, क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेकेंड कंडीशन भी आप सुन लीजिए ताकि एकदम से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन वहां पे बता दे रहा हूं, केस सेकेंड में भी वही सारी चीजें। सपोज दैट एक क्रोमोसोम ये है, क्रोमोसोम क्या है 1, 2, 3 और दूसरा क्रोमोसोम क्या है 4, 5, 6, ठीक है ना, 4, 5, 6 और ये एसोसिएट हो रहे हैं, ये 1 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 3 के साथ 6, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं मियोसिस हो रहा है, ठीक है ना, मियोसिस हो रहा है।
अब मियोसिस हो रहा है तो रिजल्ट में हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल गया, कुछ इस तरह का हमको रिजल्ट मिला। आप समझे? ये क्या है? 1 5 3, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 6, ठीक है, 4 5 3। यानी कि हमको जो रिजल्ट मिला, ये जो रिजल्ट मिला उसमें हम देखेंगे कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस पे जो जीन नंबर है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो पहले वाला था, पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम था, उस पे क्रोमोसोम नंबर 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन था, इस पे जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम का कॉन्फ़िगरेशन था, ये वाले पे क्रोमोसोम नंबर 1 पे पेरेंट का था 1 2 3, और इस पे क्रोमोसोम नंबर 1 का पेरेंट का क्रोमोसोम का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल गया? 1 2 6, ठीक है। सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला? सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन 4 5 6 मिला था, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला? 4 5 एंड 3 मिला। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सेकेंड केस में क्या हुआ कि जो गैमेट्स में क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, डॉटर्स क्रोमोसोम्स, वो पेरेंट्स की तरह से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। क्रोमोसोम नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 2 3 है, और सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या? 4 5 6 है। और इसमें क्या है? पेरेंट 1 का क्रोमोसोम नंबर 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमोसोम नंबर 1 में जो जीन का कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 2 और 6 है, और जो सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 4 5 3 है। इस वे से हम कह सकते हैं कि जीन, इसमें क्रोमोसोम, सेकेंड केस में क्रोमोसोम इसमें भी सारे साथ साथ आए। क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे सारे जीन्स पास आए, लेकिन क्रॉसिंग ओवर सिर्फ एक पॉइंट्स पे हुआ, और वो पॉइंट्स क्या था? 3 एंड 6। बाकी 1 4 एंड 2 5 इस पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। बट at the point number 3 and 5, that is gene number 3 and 5, gene number 3 from chromosome number 1 and gene number 6 of chromosome number 2 remain success to exchange their genetic material, and then 6 skip to the 3 position and third genes replace the 6 position on the second chromosomes. It means we can say that crossing over get success between 3 to 5 genes, यानी कि 3 and 5 जीन्स के बीच में 3 and 6 जीन्स, सॉरी 3 and 6 जीन्स पे क्रॉसिंग ओवर सक्सेस हुआ। तो हुआ क्या रिजल्ट में? ये क्या बोल सकते हैं इसको? रिजल्ट में क्या मिला? रिजल्ट में हमको मिला कि पहले वाले क्रोमोसोम में जीन नंबर 3 की जगह कौन ले लिया? 6 ले लिया, और सेकेंड वाले केस में जीन नंबर 6 की जगह 3 ले लिया। यानी कि ये बिल्कुल अब पेरेंट्स की तरह से नहीं दिख रहे हैं। मीन्स 2 होमोलोगस क्रोमोसोम dissimilar to the parents called non-parental chromosome, and such gene combination called non-parental genes combination. So we can explain the non-parental gene combination as two dissimilar chromosomes that are not two homologous chromosomes dissimilar to the parents. Two homologous chromosomes dissimilar to the parents called
non-parental chromosomes and their gene combination, the gene combination of non-parental chromosomes are called as non-parental gene combination. Similarly, you can explain as the parental gene combination. The two homologous chromosomes similar to or identical to the parents called as parental chromosomes, and the gene combination in the parental chromosomes called as the parental gene combination. ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल का, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई. ठीक है, रीजन क्या था, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कम होता. ठीक है, तो ये यहाँ पे पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन एकदम से क्लियर हो गया. ठीक है, अब आते हैं रीजन पे इसके. ठीक है, अब इसके रीजन पे आते हैं. केस 1 का रीजन क्या है और केस 2 का रीजन क्या है, क्लियर है ना. केस 1 के रीजन पे आते हैं और केस 2 पे आते हैं. इसको मिटा दे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा. केस 1 पे आते हैं. केस 1 रीजन्स ऑफ केस 1, रीजन्स ऑफ केस 1. केस 1 का कंडीशन क्या था, लिसन. केस 1 में था एक जीन्स था जिसपे एक क्रोमोसोम था जिसमें जीन नंबर 1, 2, 3 असाइन था, और दूसरा क्रोमोसोम था उसपे जीन नंबर 4, 5 एंड 6 असाइन था. 4, 5, 6 असाइन था. ठीक है, अब हुआ क्या कि इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर फील्ड, क्रॉसिंग ओवर फील्ड एट किसमें फेल हुआ था, 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6. अब क्रॉसिंग ओवर 1, 4, 2, 5 और 3, 6 में फेल होगा तो बिल्कुल एकदम हूबहू वही पेरेंट्स की कार्बन कॉपी, पेरेंट के क्रोमोसोम की कार्बन कॉपी सीधे सीधे गैमेट्स में आ गई इस तरह से 1, 2, 3 और इसमें क्या गया 4, 5, 6. ठीक है, अब इसके पीछे की मिस्ट्री क्या थी, इसके पीछे की मिस्ट्री मॉर्गन ने ही डिस्कवर की और बताया कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे जीन्स थे यानी कि 1, 2 और 3 इनके बीच में यानी 1 और 2 के बीच में जो लिंकिंग था वो काफी टाइट था. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दे रहे हैं. लिसन, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 था और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है. ठीक है, 1, 2, 3 इसके जीन है, 4, 5, 6 इसके जीन है. यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया था, फेल हो गया था. क्रॉसिंग ओवर फेल किसमें क्रॉसिंग ओवर 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 ये क्रॉसिंग ओवर फेल हुआ था. और बिल्कुल क्या मिला था हमको, बिल्कुल हमको मिला था पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, पेरेंटल जीन combination. This gene combination, that is chromosome number 1 and chromosome number 2, has similar kinds of gene combination as like the parents called as parental gene combination. फिर मॉर्गन ने क्या बताया, मॉर्गन ने ये बताया कि क्रोमोसोम ये 1, 4, 2, 6 और 3 1, 4, 2, 5 और 3, 6 ये जब क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे जीन नंबर 1, 4 ऑफ जीन नंबर 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 जब क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म कर रहे थे यानी पास आए तो ये जीन्स अपना एक्सचेंज नहीं कर पाए, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 का जीन ये 3, 6 पे नहीं जब शेयर कर पाया, 6 जो है 3 पे नहीं शेयर कर पाया, 2 जो है 5 के साथ शेयर नहीं कर पाया. ठीक है, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या रीजन है, लिसन सब लोग ध्यान सुनेंगे. रीजन ये है कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन है 1 एंड 2, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन है 1 एंड 2 ये काफी टाइटली पैक्ड है. क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 एंड 3 जो जीन्स है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो 2 एंड 3 जीन्स है ये भी टाइटली पैक्ड है. क्लियर है, ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 की कंडीशन में आते हैं 4 एंड 5 ये टाइटली पैक्ड है, 5 एंड 6 ये टाइटली पैक्ड है. ये जब पूरी तरह से टाइटली पैक्ड है तो ये 5, 6 को अच्छे से पकड़े हुए हैं,
ये 6 3 पे नहीं जा सकता, और 2 जो है 3 को अच्छे से पकड़ा हुआ है, यानी 3 अब 6 पे नहीं जा सकता। ये इनकी वजह से ये एक्सचेंज इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे टाइटली पैक्ड है। इट मींस द जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स आर टाइटली पैक्ड, दैट इज जीन्स ऑफ 1 2 2 3 4 5 and 5 6 are tightly packed. Genes of 1 2 2 3 and 4 5 and 5 6 are tightly packed, so they do not allow to crossing over, they do not allow to exchange of the genes, that is they do not allow to exchange during the crossing over. That's why he found that the reason behind the fact why parental gene combination are formed, why the all genes on next chromosomes are similar to the parental one, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 1 2 of the first generation is similar to the chromosome number 1 2 of second generation, keep in mind. So here genes of 1 2 2 3 and 4 5 5 6 are tightly packed. So the condition or phenomenon in which several genes on the same chromosomes are tightly packed called as linkage. लिख देंगे कॉपी में, the phenomenon in which several genes on same chromosome, several genes on same chromosomes are tightly packed called linkage. Simply linkage means linked gene. Linkage means linked genes. So here we can say that the linkage are common in 1 2 2 3 4 5 and 5 6, that is the linkage genes of chromosome number 1 is, क्रोमोसोम नंबर 1 के लिंकेज जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या आया 1 2 2 3, यानी टोटल कितने जीन्स, कितने लिंक्ड जीन्स है, टोटल क्रोमोसोम नंबर 1 पे कुल कितने जीन्स है लिंक, 2 जीन्स। क्रोमोसोम नंबर 2 पे कौन कौन से जीन लिंक है, 4 5 and 5 6, 4 5 and 5 6, यानी कुल इसमें भी 2 लिंकेज है, यानी कि कुल मिलाकर के कुल कितने लिंकेज है, टोटल 4 लिंकेज। टोटल कितने लिंकेज है, 4 लिंकेज, ठीक है ना। टोटल 4 लिंकेज कैसे है, 2 इसमें है, 2 लिंकेज इसमें है और 2 लिंकेज इसमें है, देखो 1 and 2 इसमें है और इसमें भी 2 लिंकेज है, टोटल 4 लिंकेज, यानी लिंकेज का परसेंटेज ज्यादा होगा, लिंकेज का परसेंटेज ज्यादा होगा तो सीधे हम कह सकते हैं टाइटली पैक्ड जीन्स ज्यादा है, ठीक है ना। जीन्स जब टाइटली पैक्ड होंगे तो लिंकेज का परसेंटेज ज्यादा होगा और पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन भी ज्यादा होंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये सब सारी चीजें पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी लिंकेज के कॉन्सेप्ट में हमको कुछ पॉइंट्स हमको बताने हैं, ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, क्लियर है। चलो आते हैं, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो हम इस बेस पे क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ऑन केस 1, हाई परसेंटेज ऑफ linkage is due to tightly packed genes,
high percentage of linkage occurs due to tightly packed genes. More linkage means more parental gene combination in next generation. More linkage means more parental gene combination in next generation. It means much percentage of linkage always gives high number of parental genes combination. परसेंटेज अगर लिंकेज का ज्यादा होगा तो पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। हाई परसेंटेज ऑफ लिंकेज इज ड्यू टू द टाइटली पैक्ड जीन्स, एंड हम ये भी बोल सकते हैं टाइटली पैक्ड जीन्स की वजह से लिंकेज ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि लिंकेज ज्यादा होगा तो पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा अपीयर्स होंगे, यानी कि पैरेंटल जीन का परसेंटेज एकदम बिल्कुल ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी हमने देखा कि पहले वाले यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के क्रोमोसोम्स थे उसमें टोटल नंबर ऑफ लिंकेज जीन्स कितने थे, 4, 2 फर्स्ट क्रोमोसोम पे और 2 सेकेंड क्रोमोसोम पे। और सेकेंड वाले जनरेशन में पैरेंटल जीन्स में क्या था, 100% जो है, यानी कि 4 उसमें भी थे और 4 सेकेंड जनरेशन के क्रोमोसोम में भी लिंकेज हमको मिला, यानी लिंकेज का मीन्स लिंक्ड जीन्स है। आई होप ये पूरा कंक्लूजन केस 1 से हमने निकाल लिया, यानी लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, बैक करके वीडियो को लिंकेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेंगे। अब आते हैं केस सेकंड पे, ठीक है ना। केस सेकंड पे आते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फिलहाल अभी केस सेकंड पे हम आते हैं, जो हम उसमें भी रीजन देख लेते हैं आखिर किस वजह से जो है क्रॉसिंग ओवर हो पाया 5 और 6, जो 3rd और 6 के केस में, 3rd और 6 के जीन्स में क्यों क्रॉसिंग ओवर हो पाया था। हम केस सेकंड पे आते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा आते हैं केस सेकंड पे। रीजन्स ऑफ केस सेकंड, रीजन्स ऑफ केस सेकंड, केस सेकंड के रीजन पे आते हैं। केस सेकंड में क्या हुआ था, सब लोग अच्छे से देखेंगे। एक क्रोमोसोम ये था, फर्स्ट जनरेशन के क्रोमोसोम का कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 3 था। इसमें क्या था, 4, 5, 6 था। ये क्रोमोसोम नंबर 1 थे और क्रोमोसोम नंबर 6 थे। हालांकि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रोमोसोम नंबर 1 के सभी जीन्स क्रोमोसोम नंबर 2 के सभी जीन्स के साथ एसोसिएट होंगे, यानी कि ये 1 4 के साथ, ये 2 5 के साथ और 3 6 के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद हमको रिजल्ट क्या मिला था, हमको रिजल्ट मिला था कि अगले जनरेशन में जो दो सेकेंड जनरेशन में जो दो पेरेंट्स, जो दो सेकेंड जनरेशन के जो 2 क्रोमोसोम्स मिले थे उसमें 1, 2 और 4, 5 का कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल सही था, 1, 2 एंड 4, 5 का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एकदम यूजुअल था। लेकिन 6 और 3 ये आपस में क्रॉसिंग ओवर कर बैठे थे, यानी कि इस पे 6 आ गया था, इस पे 3 आ गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ओनली एट 3, 6 genes, that is 3rd genes of first chromosome and 6 genes of second chromosome, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर से 3rd और 6 genes पे हुआ, while the 1, 4 and 2, 5 unable to perform the crossing over, ठीक है। इस वजह से हमको क्या मिला, नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। क्या मिला था, नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और ये नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन क्यों बोला गया, सेकेंड जनरेशन के जो जीन्स है, सेकेंड जनरेशन के क्रोमोसोम के सारे जीन्स, अभी देखो इसके जीन्स का कंपेयर करते हैं तो क्या आया, इसमें आया 1, 2 और 6 आया, और इसमें क्या आया है, इसमें आया है 4, 5 एंड 3 आया है, और इसमें क्या आया है
इसमें आया 1 2 3 और इसमें आया है 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 to 6 है फर्स्ट पे और इसमें 1 to 3 है, यानी कि पैरेंटल जो फर्स्ट जनरेशन के क्रोमोसोम को सेकेंड जनरेशन से बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे नॉन पैरेंटल, पैरेंट के जैसे क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। इसके पीछे की मिस्ट्री जब पाई गई तो उसके पीछे एक रीजन पाया गया। लिसन, इसमें ये देखा गया कि क्रोमोसोम नंबर 1 2, क्रोमोसोम नंबर 2 3, क्रोमोसोम नंबर 5 4 5 और 5 6 सब लिंक तो है, लेकिन 1 2 और 4 5 यही दो जो है टाइटली पैक्ड है, बाकी 2 3 और 5 6 की लूजली पैक्ड थे। ये 2 3 लूजली पैक्ड था, यानी कि बिल्कुल पैकिंग सही से हो नहीं पाया, इसने छोड़ दिया। जैसे मान लो कि ये 2 है और ये 3 है, ये आपस में लिंक है, आपस में लिंक ऐसे है कि ये छोड़ दिया साथ, तो ये चला गया कहाँ पे 6 की पोजीशन ले लिया, और यही हम 5 6 है, मान लो कि ये वाला 5 है और ये वाला 6 है, तो ये छोड़ दिया तो ये 6 वाला ऊपर चला गया, तो ये 6 वाला ऊपर चला गया तो 6 वाला यहाँ पे आ गया, और 3 वाला नीचे आया तो 3 वाला यहाँ पे आ गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं the 2 3 and 5 6 genes of chromosomes are loosely packed, so perform the crossing over, द क्रॉसिंग, ठीक है। 1 2 4 5 ये टाइटली पैक्ड थे, यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं while 1 2 and 4 5 are tightly packed। इट मीन्स हम अगर परसेंटेज देखें पेरेंट्स के फर्स्ट केस के कंपेयर में सेकेंड केस के, फर्स्ट केस में कुल कितने नंबर ऑफ टाइटली पैक्ड जीन्स थे, लिंकेज कुल कितना था। केस 1 की मैं बात करूं तो केस 1 में टोटल 4 लिंकेज थे, केस 1 में टोटल 4 लिंकेज था, 1 2 के बीच में भी लिंकेज ठीक ठाक था, लिंकेज था क्रोमोसोम नंबर के क्रोमोसोम नंबर 1 में, ठीक है। 1 2 और 2 3 के बीच में लिंकेज था, 2 लिंकेज क्रोमोसोम नंबर 1 पे थे और 2 लिंकेज क्रोमोसोम नंबर 2 पे थे, यानी 4 5 और 5 6 के केस में, ठीक है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि केस 1 के कंपेयर में केस 2 में लिंकेज का परसेंटेज कम है। अब लिंकेज इसमें कितना है, देखो यहाँ पे इसमें केस 2 में टोटल लिंकेज कितने हैं, केस 2 के केस में टोटल लिंकेज क्रोमोसोम नंबर 1 पे 1 लिंकेज है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे 1 लिंकेज है, यानी टोटल 2 लिंकेज है, टोटल 2 लिंकेज। इसमें देखो टोटल 2 लिंकेज है, बस 1 2 और 5 6 यही 2 लिंकेज है। 1 2 के बीच में लिंकेज है 1 लिंकेज, और दूसरा क्या है 5 6 के बीच में 1 लिंकेज है, यानी टाइटली पैक्ड जीन्स टोटल 2 है। और पहले के केस में क्या था, टाइटली पैक्ड जीन्स का नंबर 4 था, इस वजह से परसेंटेज उसमें पैरेंटल का कितना आया 100%, और उसमें परसेंटेज पैरेंटल का आया ही नहीं, सब नॉन पैरेंटल क्रोमोसोम्स हो गए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन की वजह हाई परसेंटेज ऑफ लिंकेज हो सकता है, ठीक है। नॉन पैरेंटल की वजह क्या है, हाई परसेंटेज लो परसेंटेज ऑफ लिंकेज। तो इसका भी कंक्लूजन हमको निकालना है, लो परसेंटेज ऑफ लिंकेज ऑलवेज गिव्स द हाई नंबर ऑफ नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। Loosely packed genes responsible for the low percentage of linkage or non-parental gene combination. The non-parental gene combination, the process of formation of non-parental gene combination is known as the recombination, and the product of recombination is known as recombinants. So non-parental gene combination, this is the non-parental gene combination, and these two chromosomes that are the product of crossing over of first chromosomes or the first 2 chromosomes are called as non-recombinant. This is called as recombinant. This is called as recombinants. Keep in mind, parental gene combination called as non-recombinant,
and non-parental gene combination called as recombinant. So this is the recombinants and process of exchange of genes, process of exchange of genes on the first and second chromosomes from the first generation is known as the recombination. So this phenomenon is known as crossing over or recombination. Crossing over is also known as recombination. Keep in mind, crossing over is also known as recombination, and the product of recombination is known as recombinants. As you all know, this is also known as non-parental, यानी non-parental को ही recombinants बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिंकेज जब कम होगा, लिंकेज का परसेंटेज जब कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज ज्यादा होगा, और नॉन पेरेंटल के परसेंटेज यानी नॉन पेरेंट का जो जनरेशन होगा वो ज्यादा होगा। ये नॉन पेरेंटल है, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट्स का पेरेंट अगर परसेंटेज ज्यादा होगा तो सीधे सीधे पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन कम होगा, जो फर्स्ट केस में मैंने बताया था। तो यहाँ पे केस सेकंड में देखो 2 लिंकेज थे और केस सेकंड में टोटल 4 लिंकेज थे, यानी हम बोल सकते हैं कि केस 2 के कंपेयर में केस 1 में लिंकेज का परसेंटेज ज्यादा था। केस 1 के कंपेयर में केस 2 में, केस 2 के कंपेयर में केस 1, केस 2 के कंपेयर में केस 1 में लिंकेज का परसेंटेज ज्यादा है। इस वजह से पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन हमको मिला सेकेंड केस में, हम आते हैं, सब नोट कर लीजिए। सेकेंड केस के लिए हमको क्या मिला, ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा भी नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए। क्लास होता तो ऑलमोस्ट आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल प्रॉब्लम। क्लास होता तो आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछते, उसी में सारी चीजें मैं सॉल्व कराता। लेकिन अभी क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, पूछने के बराबर है, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, यानी कि एकदम तब तक देखते रहिए जब तक कि आपको लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अभी आते हैं इससे हमको क्या कंक्लूजन, सेकेंड वाले के पास हमको क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन हमको क्या मिला, लिसन। द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स। दूसरा वाला द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। हाई परसेंटेज ऑफ linkage causes less percentage of recombinants and less percentage of non-parental gene combination। इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज अगर लिंकेज का ज्यादा होगा तो नॉन पेरेंटल का जो परसेंट होगा वो कम होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज भी कम होगा। अब आते हैं लेस परसेंटेज ऑफ लिंकेज causes हाई परसेंटेज ऑफ डॉट 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 का मतलब हाई परसेंटेज ऑफ लिंकेज causes लेस परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड लेस परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हाई की जगह पे लो कर दिया मैंने, लेस कर दिया, लेस परसेंटेज ऑफ लिंकेज causes मच, यहाँ पे लिखेंगे हाई परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड हाई परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल। यानी कि लिंकेज का परसेंटेज जब कम होगा, लिंकेज का परसेंटेज जब कम होगा तो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज्यादा होगा, साथ ही साथ रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज ज्यादा होगा। सीधे सीधे बोल सकते हैं एक और कॉन्सेप्ट, हाई परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन
gene combination is due to loosely packed genes, यानी कि रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज अगर ज्यादा है तो उसके पीछे की कहानी है कि लूजली पैक्ड जीन्स उसमें ज्यादा है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं आगे एंड लेस परसेंटेज ऑफ टाइटली पैक्ड जीन्स, यानी कि टाइटली पैक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट जो है, टाइटली पैक्ड जीन्स जो है वो क्या होंगे, टाइटली पैक्ड जीन्स जो है वो कम होंगे तो लूजली पैक्ड ज्यादा होगा, और साथ साथ जो है क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज है नॉन पेरेंटल का कॉम्बिनेशन वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इससे रिलेटेड है, इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।